Welcome students. So now we are going to start with the next topic, that is set. In this video lesson I am going to discuss all the basics of the basic operations which can be applied on the sets. So first one is the union of the sets. ठीक है, देखो union की होता है, if I say that I am having a set A, ठीक है जी, एक A set है मेरे को, ठीक है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੁਝ ਚਾਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ B ਸੈਟ ਮੈਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ 6 8 10 ਐਂਡ 12 and they said कि you have to find out the A union B. A union B ਕੀ ਹੁੰਦਾ? A union B is that kind of a set ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ A ਤੇ B ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। A union B ਵਾਲਾ ਸੈਟ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਗਰ A ਸੈਟ ਹੈ ਗਿਵਨ B ਹੈ ਗਿਵਨ यूनियन ने दोनों कंबाइन करना। कंबाइन कितना होएगा, देखो 2 4 ठीक है 6 एंड 8 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ A ਤੇ B ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆने ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 6 ਤੇ 8 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 6 ਤੇ 8 B ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। 6 ਤੇ 8 ਜਿਹੜਾ B ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈੱਟ ਮੈਂ A ਯੂਨੀਅਨ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈੱਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਔਰ ਰਿਪੀਟਿਡ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਅਨ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 2 4 6 8 ਇਹ ਵਾਲਾ 6 8 ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਐਂਡ 12 ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਏ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸੈਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ A ਯੂਨੀਅਨ B। ਯੂਨੀਅਨ B ਦੇ ਵਿੱਚ A ਤੇ B ਕੀ ਹੁੰਦੇ, A ਤੇ B ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ NCERT ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਫ ਆਈ ਸੇ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਮੈਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। this is a universal set which is given over here and A मान लो मेरे को कोई सेट हैगा, ठीक है जी। नेक्स्ट B मेरे को एक होर सेट गिवन है, इफ आई से कि 3 4 5 6, ठीक है, एंड C मेरे को एक होर सेट गिवन है 5 6 7 8, कुछ इदा का एक सैट गिवन है। ठीक है जी। सो उन्होंने इतने क्या कि फाइंड आउट करके दिखाओ कि A यूनियन, ठीक है, तुसी की फाइंड करना कि A यूनियन B फाइंड करो, A यूनियन C फाइंड करो एंड A यूनियन B यूनियन C फाइंड करके दिखाओ। ठीक है, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ। ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਿਫਾਈਨ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈੱਟ ਕਿ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗਰ ਆਫ ਆਲ ਦ ਸੈੱਟਸ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਸੈੱਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹਦੇ ਸਬਸੈੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਗਿਵਨ ਆ 1 to 10 ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਗਿਵਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੈੱਟ ਵੀ ਗਿਵਨ ਆ, ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈੱਟ ਐਂਡ ਬਿਗਰ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਗਿਵਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਬਸੈਟਸ ਹੈਗੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਨ ਆਰ ਸਕੂਲ all the students of 10th class, ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास इज अ यूनिवर्सल सैट। ये किवें यूनिवर्सल सैट है बिकॉज अगर ये मैं सबसैट बनाने की कोशिश करा कि अगर मैं कਹਾਂ कि ऑल द सैट ऑफ द बॉयज़ इन द 10th क्लास, ऑल द सैट्स ऑफ द गर्ल्स इन द 10th क्लास, ठीक है, ये सारे की बन जाएंगे, सबसैट बन जाएंगे। पर मेजर जो ਵੱਡੇ वाला सैट है वो की होगा ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द 10th क्लास, सो दैट इज़ अ यूनिवर्सल सैट। इफ आई से कि मतलब डिफरेंट कंटैक्सट ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंट एग्जाम्पल ਦੇ ਵਿੱਚ यूनिवर्सल सैट की जो डेफिनेशन है ना वो चेंज होती रहती है। जिवें इफ आई से कि in case of the triangles, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि सेट ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, सेट ऑफ द स्केलर ट्राइंगल्स, ठीक है, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, ये सारे ट्राइंगल दी टाइप्स है। ठीक है, छोटे सैट बनते हैं, बट इफ आई से ओनली ट्राइंगल्स, ठीक है, दैट इज़ अ यूनिवर्सल सैट कि जिहदे विच सारे दे सारे ट्राइंगल उन्हां दे सैट जिहड़े इनकलूडिड है, एक वड्डे वाला सैट, दैट इज़ कॉल्ड अ यूनिवर्सल सैट। ठीक है, आई होप दिस विल क्लीयर योर डाउट। सो इत्थे मैं हम देखो तुहानूं दस रही कि आई थिंक NCERT दी वन ऑफ द क्वेश्चन है। सो देख लो एक बारी कि इहनूं किद्दां सॉल्व करना यूनियन नूं। सो A यूनियन B कि A ते B दे जिहड़ा दोनों नूं कंबाइन करके A यूनियन B साडे कोल की बनदा। ठीक है, स्टार्ट सॉल्विंग A यूनियन B। देखो 1 2 3 4 आ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ 1 2 3 4, ਇਹ ਵਾਲਾ 3 ਤੇ 4 ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਲਿਖਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕੀ ਬਣੇਗਾ 5 ਤੇ 6 5, A ਤੇ B ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। सो A यूनियन C, A तो C के एलीमेंट्स नूं कंबाइन करना, पहले A के एलीमेंट्स लिखिए। ठीक है, आफ्टर दैट C के एलीमेंट है 5 6 7 8, नो एलीमेंट इज कॉमन, सो आप सारे एलीमेंट आ जाएंगे 5 6 7 8। ठीक है जी, A यूनियन C, A यूनियन B यूनियन C, यानी कि तिना का कॉम्बीनेशन A यूनियन B यूनियन C, कॉम्बीनेशन ऑफ द थ्री। सो एक ही बनेगा, तिना देख लिखिए 1 2 3 4,
ठीक है। बी ए नाल कंबाइन करांगे 3 ते 4 कॉमन है, कॉमन वाला नहीं लवांगे। दैन नैक्सट 5 एंड 6, ठीक है। आफ्टर दैट ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ कॉम्बीनेशन, ठीक है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ कॉम्बीनेशन करांगे जो तो 5 ਤੇ 6 फिर ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ कॉमन आ गया। नाउ ਇਹ नहीं लिखने ਆਪਾਂ, की लिखांगे नैक्सट वाले 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दीज आर द एलिमेंट्स इन A union B union C। so in this way you can find out the union of the different kind of the sets। अच्छा ਇਹਦੀਆਂ कुछ properties कुछ given ਸੀਗੀਆਂ properties or the operations which can apply on the union of the sets, ठीक है। I'm going to explain all the properties। देखो सब तो पहले प्रॉपर्टी हैगी सीगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये सारियां प्रॉपर्टीज जो है असी रियल नंबर ते रियल नंबर्स जो असीं पढ़िया सी ना छोटी क्लासेस दे विच, उदों आपां प्रॉपर्टीज पढ़दे हुंदे सी। आई थिंक तुसीं भुल चुके हो प्रॉपर्टीज नूं। आई एम गोइंग टू अगेन डिस्कस अबाउट ऑल द प्रॉपर्टीज। इफ आई से दैट आई एम हैविंग रियल नंबर्स इन केस ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। अगर मेरे कोल कोई दो नंबर है, लाइक इफ आई से 2 एंड 3, अगर मैं इन्हां दोनों नूं ऐड करा 2 + 3 = 3 + 2, मतलब कॉम्यूटेटिविटी एग्जिस्ट करती है। यानी कि अगर मैं 2 + 3 भी कर दी तो 3 + 2 भी कर दी, मतलब इंटरचेंज भी कर देंगी, अगे पिछे भी कर देंगी, तो भी वो रिजल्ट होल्ड करता है, एक दूजे के इक्वल आ जाएंगे। सो ਇਹੋ जी टाइप की प्रॉपर्टी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ कि कॉम्यूटेटिव आ, मतलब रियल नंबर्स की है कॉम्यूटेटिव है। इन केस ऑफ दी आप सैट की गल कर रहे हैं, हुण आप जो जिन्ने भी मैं इत्थे सैट लए, हुण मैं सैट की गल कर रही हूँ। आप सैट में देखना कि कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करता है कि नहीं करता। इन केस ऑफ यूनीयन ऑफ दी सैट, अगर मैं कहां कि A यूनीयन B, ए तो बी का मैं अगर मैं यूनीयन लवां किते इक्वल आंदा B यूनीयन A के इक्वल आंदा, ठीक है। ए होल्ड करती है, इत्थे आप चैक कर सकते हैं। जिवें A यूनीयन B मैं इत्थे लिया, A यूनीयन B है लिया, अगर मैं B यूनीयन A इत्थे लैण की कोशिश करा, देखो जरा B यूनीयन A लवां इत्थे, ठीक है। पहले B के एलीमेंट्स लिख लिए 3 4 5 6, ठीक है। उस तो बाद A के एलीमेंट यही वाला 3 4 कॉमन है, इनू नहीं लेना। दैन 1 एंड 2, ठीक है जी। ए तो एलीमेंट सेम है, A यूनीयन B = B यूनीयन A, ठीक है। सो ਇਹਦਾ मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ਨੂੰ होल्ड करता। दिस प्रॉपर्टी आही वाली चीज़ A + B = यानी कि इत्थे आ वाली चीज़ A + B = B + A, इस प्रॉपर्टी ਨੂੰ ही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते, ठीक है जी। नैक्सट प्रॉपर्टी इज दी एसोशिएटिव प्रॉपर्टी। एसोशिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोशिएटिव प्रॉपर्टी भी जो है वो इन द केस ऑफ यूनियन इट होल्ड्स, मतलब कि A यूनियन B दा यूनीयन मैं अगर C दे नाल लै लवां, ठीक है। इस तो बाद A पहले छड्ड दा ते इहदा यूनीयन मैं लै लवां B यूनीयन C, यानी कि पहले मैं की कीता A ते B दा यूनीयन लिया, उहदा यूनीयन करन तो बाद उहदा यूनीयन मैं C दे नाल कर दिता। आफ्टर दैट इस चीज़ किते इक्वल आएगी A दा यूनीयन B यूनीयन C दा पहले कीता, उस तो बाद इन्हां दोनों का जिहड़ा यूनीयन का आंसर आया उहदा मैं A दे नाल यूनीयन कर दिता। जिवें कि मैं इन केस ऑफ रियल नंबर्स अगर मैं लैके दिखावां तो अगर मैं 3 रियल नंबर्स लै लवां 2 3 5 केस, ठीक है। अगर मैं दी एसोशिएटिविटी लिखने की कोशिश करा तो यह आएगा A + B + C = अगर A पहले लै लवां + B + C, दिस इज कॉल्ड द एसोशिएटिविटी इन द रियल नंबर्स, ठीक है। जिदा कि अगर मैं लिखने की कोशिश करा 2 + 3 + 5 विच इज़ इक्वल टू 2 + 3 + 5, यानी कि अगर मैं पहले इन्होंने दोनों प्लस करके इसका आंसर आएगा 3 + 2 5 + 5 विच इज़ इक्वल टू 10, या इनू छड्ड दा तो पहले 3 ते 5 ऐड करा, 3 ते 5 8, आ दोनों इक्वल है, यानी कि ये दोनों इक्वल है। इन केस ऑफ रियल नंबर्स इट होल्ड्स, एसोशिएटिविटी होल्ड करती। इत्थे असीं प्रूफ ये किया कि इन केस ऑफ यूनीयन एसोशिएटिविटी स्टिल होल्ड्स, जिवें कि अगर A दा यूनीयन B दे नाल कीता, A यूनीयन B मैं इत्थे निकालिया, देखो A यूनीयन B है, ठीक है। A यूनीयन B अगर मैं निकालिया, इसका यूनीयन अगर मैं C दे नाल कर देवां, ठीक है। जिवें मान लो मैं करके इत्थे असीं कीता ही आ A यूनीयन B यूनीयन C, जिवें इत्थे असीं कीता A यूनीयन B यूनीयन C, ठीक है। ए वाली चीज़ A यूनीयन B यूनीयन C विच इज़ इक्वल टू A यूनीयन B यूनीयन C, यानी कि पहले मैं B यूनीयन C लिख लवां, पहले मैं कर लैनी, इनू कर लीए सॉल्व। B यूनीयन C ए वाला ते ए वाला, B यूनीयन C कितना आएगा 3 4 5 6, ठीक है। 5 6 कॉमन है, 7 8 ले लिया, ठीक है जी। आ B यूनीयन C निकालिया, उस तो बाद B यूनीयन C का अगर मैं कहां कि A दे नाल यूनीयन, A यूनीयन B यूनीयन C किहदे इक्वल आएगा A दे नाल, देखो ए वाला A यूनीयन, यानी कि पहले A के एलीमेंट्स 1 2 3 4, उस तो बाद 3 ते 4 कॉमन है, ये 5 6 7 एंड 8, यानी कि A यूनीयन B यूनीयन C ए वाली चीज़ एंड ए वाली चीज़ आ दोनों की गया सेम, ठीक है जी। तो यदा मतलब एसोशिएटिविटी भी जी है यूनीयन ऑफ सैट के होल्ड करती है। दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी
of the union of sets. After that there is the third property, A union phi is equals to A. This is called the identity वाली property, यानी कि A ਦਾ अगर मैं phi ਦੇ ਨਾਲ union ਕਰਾਂ, यानी कि A जिवें मान लो मेरे को set given है A, phi की ਹੁੰਦਾ null set, ठीक है। ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ यानी कि phi की है null set, यानी कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ मैं अगर phi मैं ਇੱਥੇ ਲਵਾਂ, यानी कि A ਦੇ ਵਿੱਚ मैं कुछ भी नहीं ऐड कर रही, A ਦੇ ਵਿੱਚ मैं, ठीक है, A है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं कुछ भी नहीं ऐड कर रही, ਉਹਦਾ यूनियन मैं ਕਿਸੇ ਵੀ एलिमेंट ਦੇ ਨਾਲ नहीं कर रही, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਕੁਝ ਕੀ ਆਏਗਾ, A ही आएगा एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ A ही आएगा ना, ठीक है। So A union phi is equals to A. This is called the identity property. So next is the A union A is equals to A. This is called the idempotent law. Idempotent law ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, पेपर में आ भी सकता कि स्टेट एंड प्रूफ idempotent law की ਹੁੰਦਾ है। सो A union A ਦਾ A ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ यूनियन कर देवां, जिवें मान लो मेरे को इत्थे A गिवन आ, A ਦੇ एलिमेंट्स गिवन आ, इनू मैं ਇਹਦੇ ही एलिमेंट्स ਦੇ ਨਾਲ, A गिवन आ मैनू, ठीक है, इनू ਇਹਦੇ ही एलिमेंट्स ਦੇ ਨਾਲ अगर मैं यूनियन करदा, यूनाइट करदा A union A, तो A ही रहेगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ होर ਤਾਂ ऐड होएगा ही नहीं, ठीक है। सो A union A is equals to A. Now fifth property is U. This is the U, मतलब यूनिवर्सल सेट मैं लै रही हां वाला U, ਇਹਦਾ यूनियन मैं कर रही हाँ A ਦੇ ਨਾਲ, which is equal to U, यूनिवर्सल सेट आ वाला। देखो किदा U मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ कि what is that U, ਇੱਥੇ मैं ਕੀ ਲਿਆ ਵਾ ਵਾਲਾ यूनिवर्सल सेट, this is U over here, ठीक है जी। ਇਹਦਾ अगर मैं A ਦੇ ਨਾਲ यूनियन करा, करके देखिए, ਇਹਦਾ A ਦੇ ਨਾਲ मैं यूनियन कर रही हाँ, ठीक है। देखो ध्यान नाल जरा, U वाला सेट 1 2 3 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 एलिमेंट्स है, पहले तो मैं 10 एलिमेंट्स लिख लवां वाले, करके देख रही हैं क्या रिजल्ट होल्ड करता, कितना आंदा, ठीक है। उस तो बाद A वाले एलिमेंट्स भी नाल इनकलूड करने असीं इहदे विच, ठीक है। देखो A वाले एलिमेंट्स की है 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4 ऑलरेडी यूनियन वाली सैट दे विच हैगा, ठीक है। तो आ सैट मेरे कोल की आ गया, यूनियन यूनिवर्सल सैट यूनियन किया इहदा A दे नाल, की आंदा एक्चुअल दे विच आ पूरे 10 एलिमेंट की हैगे ते यूनिवर्सल सैट ही है, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब यूनिवर्सल सैट का यूनियन करांगा अगर मैं A ਦੇ ਨਾਲ, तो यूनिवर्सल सैट अगेन इटसेल्फ अपने आप दोबारा आ जाता मेरे को, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनियन ऑफ द सैट, जी कि तुसी मतलब बाय लर्न करनी है, मतलब इन द केस ऑफ द क्वेश्चंस किते ना किते यूज हो जाएंगे प्रॉपर्टीज, ठीक है जी। So in this video lesson I'm going to explain about the intersection of the set. Intersection of the set ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ दो सैट अगर या किन्ने भी सैट गिवन हो असीं उन्हां दा की लैना कॉमन पार्ट इज द कॉल्ड द इंटरसैक्शन ऑफ द टू सैट। जिद्दां कि आपां यूनियन दे विच आपां की लैंदे सीगे कि आपां दो सैट नूं यूनाइट करदे सीगे, कंबाइन करदे सी, कॉम्बीनेशन ऑफ द टू सैट इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ द सैट्स, ठीक है। सो इंटरसैक्शन च आपां की लैना कॉमन पार्ट लैना, सिर्फ एंड सिर्फ कॉमन पार्ट, ठीक है। जिवें मान लो मेरे को A ते B दो सैट गिवन है, एलिमेंट है 2 4 6 8, एले एलिमेंट्स है 6 8 10 12, तो A ते B का कॉमन पार्ट की हो गया, ए वाले एलिमेंट सिर्फ कॉमन है 6 8, ठीक है। सो इंटरसैक्शन के किहड़े एलिमेंट आएंगे 6 एंड 8, ए जिहड़ा साइन हुंदा ना इदां वाला, दिस इज द साइन ऑफ द इंटरसैक्शन। तो आ जिहड़ा साइन सीगा किहड़ा सीगा यूनियन दा, ए वाला साइन किहड़ा गा इंटरसैक्शन दा, A इंटरसैक्शन B इज इक्वल्स टू 6 एंड 8। आफ्टर दैट वन मोर एग्जांपल जिहड़ी कि तुहाडी NCERT तो ही है, ए वाला सैट गिवन है, B 3 सैट सानूं गिवन है, असीं फाइंड करके दिखाना A इंटरसैक्शन B, ठीक है। A इंटरसैक्शन B का मतलब है कि A तो B के जोड़े कॉमन एलिमेंट्स है ना, असीं सिर्फ वही वाले लैने। कॉमन एलिमेंट्स किहड़े आ 7 9 11, इधर भी 7 9 तो 11, होर कोई कॉमन तो नहीं है ना। सो A इंटरसैक्शन B के किहड़े एलिमेंट्स आ जाएंगे, आही वाले 3। हमेशा याद रखना कि आप ब्रैकेट्स जरूर लगानी है, ब्रैकेट्स इज अ साइन कि अभी सैट ही है, ठीक है। ब्रैकेट लगाओगे तो सैट बनेगा, अदरवाइज वो सैट नहीं बनेगा। सो अगे A इंटरसैक्शन B इंटरसैक्शन C अगर निकालना, ये कि पहले जो ब्रैकेट है ना पहले उन्होंने सॉल्व करीदा। सो ब्रैकेट में पहले सॉल्व किया B इंटरसैक्शन C, B तो C का कॉमन पार्ट, B एंड C का कॉमन पार्ट आया 11 तो 13 विच इज़ रिटन ओवर हियर, ठीक है। तो A मेरे को लैवल आ गया, मैं इत्थे लिख लिया। हुण A एदा A इंटरसैक्शन B इंटरसैक्शन C, इन्हां दोनों का जिहड़े दो सैट मेरे को आया, इन्हां दोनों का अगला कॉमन पार्ट फिर लै लांगे की आएगा, इन्हां दोनों का कॉमन पार्ट आही वाला 11, ठीक है। सो 11 आ गया। A इंटरसैक्शन C, A तो C का कॉमन पार्ट किहड़ा है 11, सो 11 इज द A इंटरसैक्शन C। सो नैक्सट आई एम गोइंग टू इदां तुसीं बाकी सारे भी इंटरसैक्शन जो है फाइंड कर सकते हो, तुहाडी बुक ते बहुत सारी NCERT दी एग्जाम्पल्स भी गिवन है, सम्स भी गिवन है, सारे के सारे सम इंटरसैक्शन वाले इदां ही करने आ बाय टेकिंग द कॉमन पार्ट ऑफ द सेट्स। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंट प्रॉपर्टीज विच कैन बी अप्लाइड ऑन दैट प्रॉपर्टीज,
ठीक है जी। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है प्लस दी यूनियन ऑफ सैट दियां जिहड़ियां ना प्रॉपर्टीज आपां कीतियां। हुण नैक्सट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसैक्शन। ठीक है, इंटरसैक्शन दियां देखो प्रॉपर्टीज की हैं। ए इंटरसैक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसैक्शन ए दे इक्वल है, यानी कि अगर मैं ए ते बी दा कॉमन पार्ट लवां तो बी ते ए दा कॉमन पार्ट भी लवां, दोनों की होणगे सेम। दिस इज कॉल्ड दी केड़ी प्रॉपर्टी, मैंने हुणे लास्ट एक्सप्लेन भी किया, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, विच इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ए इंटरसैक्शन बी इज इक्वल्स टू बी, ए इंटरसैक्शन बी मैं निकालिया तो अगर बी ते ए दा इंटरसैक्शन निकाला, यानी कि मैं इन्होंने दोनों का अगर कॉमन पार्ट लैन की कोशिश करा तो कॉमन पार्ट तो सेम ही आएगा, 7 8 7 9 11 इधर भी है, 7 8 9 11 इधर भी, यानी कि दोनों का कॉमन पार्ट की आएगा सेम। सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, कॉम्यूटेटिविटी होल्ड कर दी है। नेक्स्ट देखो जी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दिस इज कॉल्ड किहड़ी प्रॉपर्टी इन्होंने कहांगे, एसोशिएटिविटी, एसोशिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि पहले मैं अगर ए इंटरसैक्शन ए दा बी दे नाल इंटरसैक्शन करना, ओदा जो इंटरसैक्ट आंदा वा सैट ओदी इंटरसैक्शन सी दे नाल करा, या ए नूं रहन दवां पहले बी ते सी दी इंटरसैक्शन आ वाली ब्रैकेट पहले सॉल्व करके ए दे नाल इंटरसैक्ट करा। ठीक है, इन्हां दोनों का रिजल्ट भी की है, सेम आंदा, ये तुसीं होल्ड करके देख सकते हो। ठीक है, नैक्सट इज दी फाई इंटरसैक्शन ए इज इक्वल्स टू फाई। फाई इंटरसैक्शन ए दा मतलब कि जिवें ए सैट गिवन है एदा ते फाई की है, नल सैट है। नल सैट यानी कि उहदे विच कोई भी एलीमेंट नहीं है। अगर ए इत्थे गिवन है, अगर फाई मैं इत्थे लै लैनी ए दा ते फाई दा, मतलब ए दे विच ए ते फाई दे विच उहदा कॉमन पार्ट की होएगा, दसो कॉमन पार्ट की होएगा। जिहड़ा ए सैट है, मान लो है ना, हर एक सैट नल सैट जिहड़ा है हर एक सैट का पार्ट तो हुंदा ही है, सानूं पता ही है। अगर इत्थे नहीं भी इत्थे लिखिया नल सैट तो हैगा ही हैगा। सो एक नल सैट एक फाई सैट है, ठीक है, एक ए सैट है, इन्हां दोनों का कॉमन पार्ट की आएगा, फाई। ठीक है ना, क्योंकि ए तो वड्डा वाला सैट है, जो कॉमन पार्ट आता ना हमेशा छोटा सैट बनता, कॉमन पार्ट वाला सैट या इंटरसैक्शन वाला सैट जो बाहर आता ना साढ़े को हमेशा छोटा वाला कॉमन पार्ट निकल के आता। सो फाई का नल सैट का तो ए का कॉमन पार्ट की है फाई। ठीक है, सो नैक्सट इज दी यूनिवर्सल सैट का ते इंटरसैक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए। अच्छा, मान लो इतने मेरे को कोई यूनिवर्सल सैट गिवन हो, ठीक है, आप आपे बना लें यूनिवर्सल सैट। लाइक इफ आई से अ यूनिवर्सल सैट, मैं अब कह देनी है कि मेरे को यूनिवर्सल सैट है 1 2 3 5 7 8 9 11 15 मे बी, लेट अस सपोज कि मेरे को यूनिवर्सल सैट आ वाला है। ठीक है जी, सो अगर एक आ मेरे को यूनिवर्सल सैट है, यदा अगर मैं इंटरसैक्शन करा ए दे नाल, देखो अगर यूनिवर्सल सैट है ए मेरे को इत्थे है 3 5 7 9 एंड 11, इन्हां दा अगर मैं करा यूनिवर्सल सैट का इंटरसैक्शन मैं कर रही हाँ ए दे नाल। ठीक है, करके देखिए की आंदा, मतलब इन्हां दोनों का कॉमन पार्ट किहड़ा आएगा, देखो कॉमन पार्ट 3 5 दोनों है 5 भी, 7 है 7 भी, 9 है 9 भी। ठीक है, तो उस तो बाद 11 है 11 भी। ठीक है जी, यह आ गया। तो यह एक्चुअल के सैट कि बन रहा है, सैट तो ए ही है, ए ही मैं दोबारा लिख लिया। यदा मतलब कि यूनीयन यूनिवर्सल सैट का इंटरसैक्शन अगर ए दे नाल करांगे तो ऑलरेडी वो सैट इट सैल्फ ए ही आ जाता मेरे को। ठीक है, यानी कि मैं हमेशा अगे भी दसिया कि इंटरसैक्शन वाला सैट जो होंगे ना, दो सैट के जो छोटा वाला सैट होंगे वो आ जाता। अगर यूनिवर्सल सैट वड्डा सैट है, ए वाला सैट छोटा है, तो वह रिजल्ट की निकल के आएगा ए सैट जो छोटा वाला सैट है। ठीक है, सो यूनिवर्सल सैट इंटरसैक्शन ए इज इक्वल्स टू ए। नेक्स्ट इज दी ए इंटरसैक्शन अगर ए दे नाल करो दैन, मतलब ए ही सैट लेना तो ए दे नाल ए दी इंटरसैक्शन ए दे नाल ही कर देनी, मतलब कॉमन पार्ट ए दे ले लेना। ठीक है, तो वो की आएगा ए दे इक्वल ही आएगा। ठीक है जी, सो नैक्सट एक होर प्रॉपर्टी होंगी है विच इज़ कॉल्ड, मैं लिख रही हूँ पहले, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये भी आप रियल नंबर के केस के की हुई है। इन केस ऑफ रियल नंबर्स मैं फिर दस देना चाहती हाँ, अगर मान लो मेरे को 3 नंबर हो 3 5 7, ठीक है, अगर मैं ये अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगावा कि लाइक आप कोई भी दो ऑपरेशन ले लें, लाइक मैं कहा कि एक मैं मल्टीप्लाई वाला लिया तो एक मैं एडिशन वाला ऑपरेशन लिया वा। ठीक है, तो मैं इदा भी लिख सकती हाँ कि 3 + 5 × 7 कि इक्वल होंगे हमेशा जोड़ा आ प्लस है ना, इनू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, जी मतलब अप्लाई करनी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है,
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि यह जो एडिशन है ना यह मल्टीप्लाई ते डिस्ट्रीब्यूट हो रहा किदा डिस्ट्रीब्यूट होंगे हमेशा आ जो 3 है ना प्लस कि होएगा 5 आ मल्टीप्लाई जो है सेंटर च आ जाएगा फिर 3 जो कि ऐड हो जाएगा 3 + 7 ठीक है जी। कुछ इस तरीके के नाल आपां कहने कि जोड़ा यह वाला ऑपरेशन है एडिशन है यह मल्टीप्लीकेशन का डिस्ट्रीब्यूट होगा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। इसी तरीके के नाल देखो ए इंटरसैक्शन बी यूनियन सी किदे ते मतलब मैं जी इंटरसैक्शन है मैं किदे ते डिस्ट्रीब्यूट की है यूनियन के उत्ते डिस्ट्रीब्यूट की है। पहले की आएगा ए यूनियन बी पहले आ जाएगा पहले आ दोनों आ यूनियन जोड़ा है सेंटर दे आफ्टर दैट एदी इंटरसैक्शन इत्थे ठीक है। दिस इज अ वे ऑफ राइटिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जिवें मैं इत्थे भी इदां ही कीता सीगा कि 3 + 5 आ मल्टीप्लाई सेंटर दे विच फिर 3 + 7 ठीक है। इसी तरीके दे नाल ए दा इंटरसैक्शन बी दे नाल यूनियन वाला सेंटर च मतलब जी इंटरसैक्शन आ यूनियन के उत्ते डिस्ट्रीब्यूट हो रही है दैट्स वाई दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ठीक है जी। इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन तुहाडे NCERT बुक दे विच अवेलेबल है जिन्हों कि तुसीं बिल्कुल इसे मैथड दे नाल कर सकते हो। Yes, so next I'm going to explain about the difference of the sets. Difference of the set देखो की होंदा अगर मेरे को मान लो कोई दो सेट गिवन है 2 या 3 सेट गिवन है like if I say I am having A set equal to कुछ इदा के एलिमेंट्स है and B set ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ को 4 8 12 this is one of your example of from NCERT इदा A and B they are the two set given उन्होंने कहा कि difference of the two set निकाल के दिखाओ C is also given C is also given so 2 4 6 8 10 12 and 14 16 so इदा मेरे को गिवन आ C ठीक है जी A B the C सेट गिवन उन्होंने कहा कि डिफरेंस ऑफ द सेट यानी कि A - B निकाल के दिखाओ ठीक है। डिफरेंस ऑफ द सेट आप डिफरेंस ऑफ द सेट जो किदा निकालते हैं A - B का मतलब है कि आप A - B वो वाले एलीमेंट्स आने हैं जोड़े A तो प्रेजेंट है पर B प्रेजेंट नहीं है ठीक है। A प्रेजेंट है पर B प्रेजेंट नहीं है A के एलीमेंट्स के B के एलीमेंट्स जोड़े आप माइनस करते हैं सबट्रैक्ट एलिमिनेट करते हैं। देखो कितना करेंगे देखो जिमें कि A इत्थे मेरे को गिवन है A - B ना पहले मैं A के एलीमेंट लिखना 3 6 12 15 18 एंड 21 ये माइनस की करने बी के एलीमेंट्स माइनस करने 4 8 12 16 ते 20 ए बी के एलीमेंट्स जोड़े माइनस होने ए के एलीमेंट पहले ये देखिए कि ये एलीमेंट माइनस करांगे तो मतलब कि कॉमन एलीमेंट्स माइनस होंगे देख लेने कॉमन एलीमेंट्स किहड़े है सो कॉमन एलीमेंट नूं माइनस करके जोड़े ए बचे रह जाएंगे वो लिख देवांगे ठीक है। देख लीए इन्होंने दोनों चो कॉमन एलीमेंट्स किहड़े आ हुण देखो कॉमन एलीमेंट्स देखो ए दे बी दे एलीमेंट्स नूं माइनस करना 3 ये नहीं है यानी कि 3 उदा ही आएगा ठीक है। 6 हुण इत्थे है ये नहीं है तो मतलब उदा ही आएगा आप माइनस नहीं करांगे ठीक है। 12 इत्थे भी है एलिमिनेट हो गया ठीक है। ए दे बी दे एलीमेंट्स नूं माइनस करना ठीक है सिर्फ कॉमन एलीमेंट नूं माइनस करना है ठीक है। बाकी एलीमेंट आप ए दे उस तरीके दे नाल ही लिख देने हैं ठीक है। सो 3 6 12 जो एलिमिनेट हो गया 15 देखो इधर है नहीं है सो राइट 15 ओवर है ठीक है जी। 18 इत्थे है 18 इत्थे नहीं है सो ये कुछ भी नहीं होगा सेम एज दैट उदा ही रहेगा। 21 इत्थे है 21 इधर नहीं है सो 21 इदा ही है। सो दिस इज द सेट ऑफ A - B ध्यान नाल देख लो कि A - B के कितना B के एलीमेंट नूं नहीं असीं छेड़ना A - B जोड़ा पहले है वो सैट के B वाले एलीमेंट्स जोड़े असीं सबट्रैक्ट कर देंगे ठीक है। सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट A - B। हाँ अगर नेक्स्ट आए हाँ जी A - C यानी कि A के C वाले एलीमेंट्स नूं सबट्रैक्ट करना पहले लिख लीए 3 6 12 15 18 एंड 21 माइनस C के एलीमेंट्स 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16 ठीक है। इन्हों मैं किदा माइनस करांगी देखो पहले 3 ये 3 नहीं है 3 उदा रहन दो ए सी वाले एलीमेंट माइनस करने यानी कि कॉमन एलीमेंट जोड़े माइनस होने बाकी होर कोई माइनस नहीं होना ठीक है। C 3 इदा ही
6 ਇੱਥੇ ਆ 6 ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 6 एलिमिनेट हो गया, ठीक है। 12 ਇੱਥੇ ਆ 12 ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ 12 भी एलिमिनेट हो गया, ठीक। 15 ਇੱਥੇ ਆ 15 ਇੱਥੇ नहीं है सो 15 लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस करके साढ़े कोल आ गया। 18 ਇੱਥੇ ਆ 18 ਇੱਧਰ नहीं है 18 ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। 21 ਇੱਥੇ ਆ 21 ਇੱਧਰ नहीं है सो 21, सो a माइनस c इज इक्वल टू 3 15 18 एंड 21 एक सैट बन गया a माइनस c ਦਾ। a ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈਣੇ ਆ ਐਂਡ c ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਦੀ ਸੈਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ NCERT ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਔਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਦੀ ਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਅਬਾਊਟ ਦੀ डिसजॉइंट सैट। देखो डिसजॉइंट सैट की होंगे, अगर मान लो ए तो बी कोई दो सैट मेरे को गिवन है, लेट इट बी कोई दो सैट गिवन है, अगर इन्हों की इंटरसैक्शन जी है वो फाइव आ जाए, यानी कि ए तो बी इंटरसैक्शन फाइव आने का मतलब है कि ए तो बी ये कुछ भी कॉमन नहीं गा, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट सैट है ए तो बी। अगर इन्होंने कुछ भी कॉमन नहीं है दैन दीज सैट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सैट्स। जिवें मान लो मैं कहां कि ए सैट मेरे को हैगा वा 2 3 4 5 एंड बी मेरे को हैगा वा 3 एंड 6, ठीक है। अगर इन्हों की मैं इंटरसैक्शन फाइंड करा ए इंटरसैक्शन बी ये देखो ए तो बी दे विच कुछ कॉमन है, देयर इज नथिंग कॉमन इन दीज सैट्स, ठीक है। सो ए इंटरसैक्शन बी की हैगा वा 5। इन दिस केस आई कैन से दैट कि ए तो बी सैट की है ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सैट्स। सो तुहाडे NCERT बुक दे विच एग्जाम्पल्स भी है, उन्होंने पूछा है कि कैन इज द सैट्स आर डिसजॉइंट सैट्स। सो तुसीं चैक कर लेना, सिर्फ आ कंडीशन चैक करनी कि उन्होंने इंटरसैक्शन जो 5 आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा दैन दे आर डिसजॉइंट, अगर नहीं आ रहा दैन दे आर नॉट जस्ट डिसजॉइंट, ठीक है जी। नैक्सट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉम्पलीमेंट ऑफ अ सैट। देखो यह टॉपिक जो है तो एक्सरसाइज 1.5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ कॉम्पलीमेंट ऑफ अ सैट। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन थोड़ा जिहा दस रही है कि कॉम्पलीमेंट ऑफ सैट आप किस तरह निकालेंगे। अगर मान लो मेरे को एक यू यूनीवर्सल सैट है तो ए एक सबसैट या तो कुछ सबसैट गिवन है, तुहानूं पता है कि यूनीवर्सल सैट सब तो वड्डा सैट हुंदा। मान लो कि जोड़े ए गिवन है वो मेरे को यूनीवर्सल सैट का एक सबसैट है, मतलब एक छोटा सैट गिवन है सबसैट है। ए कॉम्पलीमेंट मैं किनू कहांगी, ए कॉम्पलीमेंट इज कॉल्ड ए कॉम्पलीमेंट दे विच ਉਹ ਵਾਲੇ एलीमेंट आएंगे जो यूनीवर्सल सैट दे विच हैगे है बट ए दे विच नहीं हैगे, ठीक है। ए दे विच एलीमेंट्स आएंगे जोड़े ए नूं बिलोंग करते हैं, तो पर ए कॉम्पलीमेंट विच ਉਹ वाले एलीमेंट्स आएंगे जोड़े ए नूं नहीं बिलोंग करते बट किनू बिलोंग करते यूनीवर्सल सैट नूं बिलोंग करते हैं, ठीक है। जिवें कि हुण मैं तुहानूं लिख के दिखानी है, एक बारी देख लो, सारे ही जिहड़े हैगे आ ਉਹ यूनीवर्सल सैट दे हैगे आ सबसैट्स हैगे, ठीक है। फिर एक बारी देख लो, अगर मैं लिखना हो ए कॉम्पलीमेंट, ठीक है, जिहड़ी एलीमेंट ए च हैगे पर यूनीवर्सल सैट दे विच नहीं हैगे वो लिखा लगे, यानी कि ए दे विच 1 2 3 4 है, ए कॉम्पलीमेंट च किहड़े आ जाएंगे ए 1 2 3 4 नहीं लैने, बाकी लै लो 5 6 7 8 9, यानी कि ए कॉम्पलीमेंट आ गया 5 6 7 8 एंड 9। सो दिस इज दी ए कॉम्पलीमेंट। इसी तरीके दे नाल इफ आई से कि तुसीं बी कॉम्पलीमेंट लिख के दिखाओ, तो बी कॉम्पलीमेंट किहदे इक्वल आएगा, देखो बी कॉम्पलीमेंट का मतलब है कि ਉਹ ਵਾਲੇ एलीमेंट ਜਿਹੜੇ बी च हैगे आ पर बी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ बट यूनीवर्सल सैट ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ बट बी च नहीं है। बी कॉम्पलीमेंट कंटेन्स those element which are present in universal set but not in B। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 4 6 8 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ एलिमेंट्स रह गए, यानी कि 1 आ जाएगा 2 हैगा 2 नहीं लेना, 3 आ जाएगा 4 आएगा 4 नहीं लेना, 5 ठीक है 6 हैगा 6 नहीं लेना, 7 लवांगे, 8 हैगा की लवांगे 9, ठीक है जी। उस तो बाद अगे ए इंटरसैक्शन सी का कॉम्पलीमेंट, ए इंटरसैक्शन सी का कॉम्पलीमेंट का मतलब है कि ए इंटरसैक्शन सी दे विच जिहड़े एलीमेंट्स नहीं हैगे, ये पहले ए इंटरसैक्शन सी निकालांगे, ठीक है, फिर उहदा यूनीवर्सल सैट दे नाल उहनूं कंपेयर करांगे आपां, ठीक है। जिहड़े एलीमेंट्स यूनीवर्सल सैट दे विच होणगे पर ए इंटरसैक्शन सी दे विच नहीं होणगे वो उहदे कॉम्पलीमेंट दे विच आ जाणगे, ठीक है। इनू मैं एक वैन डायग्राम के नाल मैं तुहानूं रिप्रजेंट कर देनी हाँ कि लाइक इफ आई से कि एक मेरे को यूनीवर्सल सैट है वाला, ठीक है। अगर मैं कहनी कि ए एक सैट है ए एक सैट है तो ए कॉम्पलीमेंट की होएगा, इत्थे वो वाले एलीमेंट्स होणगे जिहड़े ए नूं बिलोंग करते होणगे, जिहड़े जिहड़े मर्जी, ठीक है। ए कॉम्पलीमेंट मतलब जिहड़े ए नूं नहीं बिलोंग करते, यानी कि बाहर वाला सारा पार्ट
ए ਨੂੰ नहीं बिलोंग करता, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड वट ए कॉम्प्लीमेंट। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਡੈਸ਼ ਹੈ, ਡੈਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ए ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C ਨਿਕਾਲੀਏ। A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਏਗਾ, A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਿਕਾਲਣਾ। ਪਹਿਲੇ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C ਨਿਕਾਲੀਏ, A ਤੇ C ਦਾ ਕਾਮਨ ਪਾਰਟ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕੀ ਹੈ। 1 2 3 4 3 4 5 6 आई थिंक 3 and 4 दे आर द कॉमन पार्ट ऑफ A इंटरसेक्शन C। ठीक है, हुण ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਮੈਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਦਿਖਾऊंगी। देखो ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਿਕਾਲਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, मतलब 3 4 है, 3 4 तो इलावा बाकी सारे एलीमेंट्स किहदे विच आ जाएंगे 1 2 3 4 नहीं लेना बिकॉज वो इंटरसेक्शन C दे विच हैगा। ठीक है, ये तो इलावा 1 2 अगे 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है जी, इस तरीके दे नाल आफ्टर दैट नैक्सट वी हैव टू फाइंड आउट कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालो। A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, पहले A यूनियन B निकालांगे फिर उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। A यूनियन B यानी कि A ते B के एलीमेंट्स को कंबाइन कर लिए। पहले मैं A यूनियन B निकाल लगी, ओनली A यूनियन B, इट्स नॉट अ कॉम्प्लीमेंट। A यूनियन B देखो 1 2 3 एंड 4, 2 and 4 इज ऑलरेडी देयर। ठीक है, 2 and 4 मैं लिख चुकी है, नहीं लिखांगे 6 and 8 आ जाएगा। ठीक है, ਇਹਦਾ मैं यूनियन निकाल लिया, मतलब कंबाइन कर लिया, A ਤੇ B ਦੇ एलीमेंट्स ਨੂੰ मैं कंबाइन कर लिया। सो ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ मतलब ਜਿਹੜੇ एलीमेंट्स A यूनियन B ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ A यूनियन B ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ 1 2 3 4 6 8 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ 1 ਨਹੀਂ ਆਣਾ, 2 ਵੀ नहीं आना, 3 भी नहीं आना, 4 इज ऑल्सो प्रेजेंट ओवर हेयर, 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 6 नहीं आना, 7 आएगा। ठीक है, उसके बाद 8 नहीं आना, क्या आएगा 9। ठीक है जी, 5 7 9 दीज आर द एलीमेंट्स। नैक्सट मैं निकाल के एक बार फिर दिखा देनी है A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखो A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जोड़ा है A कॉम्प्लीमेंट असी आ निकाल लिया, दिस इज द A कॉम्प्लीमेंट। देख लो एक बारी A कॉम्प्लीमेंट देखो A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, ਇਹਦਾ फिर तो एक बार फिर कॉम्प्लीमेंट निकालना। फिर तो कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब है कि यूनीवर्सल सैट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੇ एलिमेंट ਜਿਹੜੇ ਆ माइनस कर देने ਆ वाले 5 6 7 8 9। सो इफ आई सबट्रैक्ट 5 6 7 8 9 फ्रॉम दिस यूनीवर्सल सैट, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ एलिमेंट्स रह गए मेरे को 1 2 3 4। ठीक है, यही रह गए। सो A कॉम्प्लीमेंट द कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 2 एंड 3 एंड 4। ठीक है जी, सो नेक्स्ट इफ आई वांट टू फाइंड आउट B माइनस C का कॉम्प्लीमेंट निकालना। ठीक है जी, B माइनस C का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। B माइनस C का कॉम्प्लीमेंट निकालने लिए पहले मैंने B माइनस C निकालना मैंने। ठीक है, B माइनस C का मतलब है कि ਜਿਹੜੇ एलीमेंट मैंने मैं ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ डिफरेंस ऑफ द सैट समझाया, डिफरेंस ऑफ द सैट यानी कि ਜਿਹੜੇ एलीमेंट B च प्रेजेंट है तो C ਦੇ ਵਿੱਚ प्रेजेंट नहीं है, B ਵਿੱਚੋਂ C ਦੇ एलीमेंट्स ਨੂੰ कॉमन एलीमेंट्स ਨੂੰ माइनस कर देना। ठीक है, ठीक है, पहले ही लिखांगे 2। ठीक है जी, 2 ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ बट ਇਹਦੇ 'ਚ नहीं गा, सो 2 ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। 4 प्रेजेंट है इत्थे, दोनों का कॉमन एलीमेंट है माइनस, वी डोंट राइट। 6 हैगा, 6 इज नॉट 6 भी हैगा इत्थे, सो 6 भी नहीं आएगा। ठीक है, 8 इत्थे नहीं है, सो 8 आ जाएगा। सो B माइनस C मेरे को आ गया 2 एंड 8 ओनली, 2 एलीमेंट्स आ गए ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। सो B माइनस C का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट निकालने लगे ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ यूनीवर्सल सैट। ठीक है, यूनीवर्सल सैट ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ B माइनस C का कॉम्प्लीमेंट यानी कि ਜਿਹੜੇ एलीमेंट्स B माइनस C 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ यूनीवर्सल सैट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ माइनस कर देना, एलिमिनेट कर देना ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ कॉम्प्लीमेंट वाला सैट आ जाएगा, नॉट वाला सैट आ जाएगा ਜਿਹੜੇ कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ बट B माइनस C यूनीवर्सल सैट 'ਚ ਹੈਗੇ ਤੇ B माइनस C 'ਚ नहीं हैगे। B माइनस C का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 2 एंड 8 सबट्रैक्ट करके बाकी सारे 2 एंड 8 रहन दो, बाकी सारे 1 3 4 5 6 7 एंड 9। B माइनस C का कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये वाले एलीमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है जी, so this is all about the different operations which can be applied on the sets. I hope this will clear your doubts and this will hope by using these kind of the example you are able to solve the NCERT questions.